Assalamu alaikum class. Welcome back to the class. I hope you people are fine and would be enjoying the day. Walaikum assalam. Walaikum assalam. Thank you so much for the greetings, class. Let's just come towards the discussion. Yesterday we were discussing stanza number 1 and stanza number 2. So I would be starting it from your side. What do you think is the rhyming scheme of the first stanza that is in front of you? The rhyming scheme of the first stanza that is in front of you. Yes, so it is A, B, B, and A, and you have to write the rhyming scheme and in capital letters, not in small letters. ठीक है? Okay, now coming towards second stanza. This was the second one. In spite of war. Walaikum assalam. So the rhyming scheme for second stanza is A, and B, B. ठीक है? Okay, so the third stanza today we are going to end this poem, by the way. Last stanza number 3 is in front of you. It says that courage, the morning glory saith, rejoice, the daisy murmured, and just to live is so divine when pansies left their eyes to mine. सबसे पहले ये जो क्लास फर्स्ट लाइन में आपके पास वर्ड है ना सैड सैड इज द वर्ड दैट इज रिलेटेड टू ट्रेडिशनल इंग्लिश जो ओल्ड इंग्लिश थी ना इसमें इस तरह के वर्ड्स यूज्ड होते थे अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश सैड मीन्स सैड ठीक है देन द नेक्स्ट वन इज मरमर्थ इसका मतलब है टू स्पीक इन अ लो वॉइस मर्मरिंग हम कहते हैं ना स्टॉप विस्परिंग एंड मर्मरिंग तो it is again the word of old English basically. Now class again please go for the images of the pictures of the words of the flowers. The first one is morning glory. It's a name somehow it's a representation of a flower. जल्दी से सर्च करके आए पिक्चर जो है वो मेंशन करें यहाँ कि मॉर्निंग ग्लोरी का जो कलर है वो कैसा है और विच टाइप ऑफ फ्लावर इट इज एंड पेंजिस का भी आप लोग पिक्चर्स यहाँ मेंशन करें वालेकुम अस्सलाम प्लीज मेंशन ओवर हियर send a picture in comment section so that all people and students can see, including me. I have already seen, but still. Blue and color. And what about fancies?
Class, so basically both of the flowers you people can see they are blue in color somehow. So again, the poetess is basically writing and mentioning the usage of personification, ठीक है, and also talking about courage. Again, वो कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि समरी इसकी ये है कि no matter what is going on in this world, including wars and troubles and all the difficulties and complications in the life, we still need to be positive and we still need to gain some lessons from the nature. सो वो फ्लावर्स को यूज करते हैं कि वो कह रही हैं कि करेज, यानी कि मुझे मॉर्निंग ग्लोरी ने भी कहा कि आपने जो है यू हैव टू शो करेज, ठीक है. देन रिजॉइस द देसी मरमट, व्हाट डू यू मीन बाय रिजॉइस क्लास, व्हाट डू यू थिंक? ठीक है, रिजॉइस मीन्स लाइक फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, फीलिंग ऑफ जॉय, ठीक है, हैप्पी, हैप्पी फीलिंग्स जो होती हैं. सो अगेन इट्स मीन्स के डेजी डेजी की भी बात वो कर रही है कि एक और फ्लावर ने मुझे कहा कि यू हैव टू एंजॉय एंड शो शो बेसिकली हैप्पीनेस, ठीक है, बहुत ही लो वॉइस में, स्लो वॉइस में समहाउ उन्होंने मुझे कहा कि यू हैव टू एंजॉय ऑल द थिंग्स, ठीक है. आप अगेन पर्सनिफिकेशन की यूसेज हो रही है. फ्लावर्स कैन नॉट टॉक एंड फ्लावर्स कैन नॉट स्पीक, but they are basically showing the positivity and hope basically. And just to live is so divine. कि अगर आपकी जिंदगी में लाइक वी हैव सो मेनी ट्रबल्स, वी हैव सो मेनी सफरिंग्स, बट डिस्पाइट दैट इफ यू आर ओनली लिविंग एंड जस्ट पासिंग दोज मोमेंट्स, आइदर दे आर गुड और दे आर बेटर, ठीक है, नो मैटर व्हाट इज गोइंग ऑन. अगर आप सिर्फ जिंदा ही रहते हैं, ठीक है, और चीजों को फेस समहाउ करते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, ठीक है. वो भी लाइक वो भी आप कंसिडर करें कि यू आर प्रेइंग, आप इबादत कर रहे हैं, बिकॉज यू आर लिविंग, ठीक है. व्हेन पेंसिस लेफ्ट देयर आइज टू माइन, अगेन पर्सनिफिकेशन की यूसेज है कि आइज टू माइन का मतलब ये है कि पेंसिस बेसिकली उसको होप दे रहे थे कि आपने जो है ना, यू हैव टू लिव, this is one of the most significant thing in the life, to suffer all the troubles and complications, and still if you are living and you are facing all the challenges with courage and bravery, so it is much greater thing to do. और क्लास, अगर आपका इस पोएम में से कोई भी स्टैंजा आ सकता है बोर्ड के पेपर में, वैसे तो ये आपके टेक्स्ट बुक्स के अलावा ये आपकी फर्स्ट पोएम है जो इंपॉर्टेंट कंसिडर की जाती है, लेकिन अगर आपके बोर्ड के एग्जाम्स में इस पोएम से कोई स्टैंजा आता है तो वो स्टैंजा नंबर 3 होगा. तो वो स्टैंजा नंबर 3 होगा, ठीक है, इसलिए आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से समझना है. हाँ जी, समझ आ गई है आप लोगों को स्टैंजा की? ठीक है, अब हम जाते हैं. इसलिए मैंने इसके क्वेश्चंस भी थोड़े से, जो आंसर्स थे ना, वो भी मैंने थोड़े से डिटेल में एक्सप्लेन किए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टैंजा हैं. चलिए जी, रीडिंग करें. व्हाट मैसेज डू द फ्लावर्स गिव टू द पोएट, हरी अप. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज नेचर गाइड द पोएट इन दिस स्टैंजा? लेट मी नो व्हेन यू पीपल आर डन विद द रीडिंग ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, question number 3, please. Why does the poet say that just living is divine? Very, very important question.
Okay, class. Now coming towards the discussion of poetic devices in the stanza, we would be first discussing the alliteration, consonants, and assonance. Then we would be moving towards other poetic devices, basically. So alliteration. एक्टिविटी खतीजा आज आई वुड बी ट्राइंग कि लास्ट में हम करें, देखते हैं अगर हमारे पास टाइम हो. हाँ जी क्लास, व्हाट डू यू थिंक अबाउट alliteration in this stanza? ये किसने सबीहा, गुड. ठीक है, गुड ऑब्जर्वेशन. बट alliteration में वी हैव टू टॉक अबाउट कॉन्सोनेंट साउंड्स. बट वहां जो आप बात कर रही है ना, दे आर वॉल साउंड. अच्छा क्लास, मुझे ये बताएं कि लास्ट लाइन में जो व्हेन पेंसिस लेफ्ट देयर आइज टू माइन, ये देयर और टू एग्जाम्पल हो सकती है लिटरेशन की? देयर एंड टू. देयर एंड टू. देयर एंड टू नहीं हो सकती क्लास. एलिटरेशन में आपके साउंड सेम होने चाहिए. देयर में आपको दा साउंड मिल रहा है, टू में आपको था साउंड मिल रहा है. एलिटरेशन में साउंड शुड बी सिमिलर. ठीक है, दे शुड बी कॉन्सोनेंट साउंड्स. अच्छा जी, नाउ कमिंग टूवर्ड्स एजोनेंस. सबीहा ने आई थिंक पहले ही बता दिया था कि मॉर्निंग एंड ग्लोरी, मॉर्निंग, मॉर एंड ग्लो. क्या एग्जाम्पल हो सकती है ये एजोनेंस की? कैसे हो सकती है क्लास? मॉर्निंग में आपका आ की साउंड मिल रही है आपको, मॉर्निंग. हम ये तो नहीं कहते ना मॉर्निंग, कहते हैं कि नहीं? सोचे जरा और जल्दी से बताएं. इट्स गिविंग यू द आ साउंड, नॉट ओ साउंड. मॉर्निंग एंड ग्लो, ओ. यस, ठीक है. तो ये आपके पास ऐसा नहीं है कि आप ओ को दे के डिसाइड करें कि ये एजोनेंस है और कॉन्सोनेंस है. ठीक है, वॉल को रिपीट रिपीट करने से कुछ नहीं होता. साउंड्स की रेपिटेशन मैटर करती है. ठीक है, बेशक वॉल्स रिपीट हो रहे हो. अब जैसे आपका टी भी तो रिपीट हो रहा था, लेकिन एक में आपको दा साउंड मिल रहा था, एक में आपको ठा साउंड मिल रहा था. ठीक है. कॉन्सोनेंस भी नहीं है, और सम हाउ कॉन्सोनेंस तो मुझे कहीं नजर आया है क्लास. कॉन्सोनेंस देखे जरा, फर्स्ट लाइन में कॉन्सोनेंस यूज हुआ है. करेज का रॉ साउंड, मॉर्निंग का रॉ साउंड एंड ग्लोरी का रॉ साउंड, दे आर बीइंग रिपीटेड. और रिपीट कहाँ कहाँ हो रहे? एंड में हो रहे, मेड में हो रहे. सो इट वुड बी द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉन्सोनेंस जी. उसके बाद हमारे पास कॉन्सोनेंस की एग्जाम्पल. सेकेंड लाइन में भी आपके पास हैं जी कॉन्सोनेंस की एग्जाम्पल, जल्दी से बताएंगे. हरी अब. क्लास सेकेंड लाइन में आप देखें, रॉ की साउंड रिपीट हो रही है. आई एम डिस्कसिंग सेकेंड लाइन. रॉ की साउंड. तो वुड इट बी द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्सोनेंस और नॉट? ठीक है. यस, और उसके बाद वी हैव. अच्छा, उसमें भी नहीं यूज हो रहा है इज डिवाइन. ठीक है. ओके.
Class, now coming towards personification, the most important poetic device in this stanza. Personification is basically, already you people know about it, okay? It is a type of a poetic device in which the characteristics, the abilities, the merits of human beings are given to non-living things, you know. Okay? So basically, flowers, they cannot tell anything, they cannot speak anything, they cannot give you somehow motivation while talking and while speaking. लेकिन यहाँ जो राइटर है, शी इज सेइंग कि जी मुझे मॉर्निंग ग्लोरी ने ये कहा, मुझे डेजी ने ये कहा, मुझे पेंसिस ने देखा, ठीक है. सो दे कैन नॉट सी, दे कैन नॉट टॉक, दे कैन नॉट स्पीक, दे कैन नॉट इवन वेस्पर. सो यहाँ आपके पास फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और जो फोर्थ लाइन है आप लोगों की, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ personification. Yes, 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 Manu. ठीक है. And they were also giving her hope basically. ठीक है. और मुझे क्लास ये बताएं कि सिंबलिज्म भी यहाँ यूज हुआ है. सिंबलिज्म मीन्स टू यूज सिंबल्स फॉर थिंग्स. तो फ्लावर्स बेसिकली किस, आपको ट्रैफिक साइंस देखते हैं ना, आप उस पर पी को क्रॉस किया होता है, इट्स मीन्स कि यू डू नॉट हैव टू पार्क हियर. सो व्हाट डू बेसिकली फ्लावर्स रिप्रेजेंट, आप लोगों को क्या लगता है? हम फ्लावर्स को बार बार डिस्कस करें, क्या सिंबलाइज कर रहे हैं वो? ठीक है. बेसिकली दे आर गिविंग होप, मोटिवेशन, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी. ठीक है. ओके जी. इमेजरीज की बात करेंगे क्लास, वो आप लोगों ने बताना है कि लाइक विच वर्ड इज द एग्जांपल ऑफ इमेजरी इन दिस स्टैंजा. हरी अप क्लास, वी हैव टू एंड दिस पॉइंट टुडे. मॉर्निंग ग्लोरी ठीक है. द नेक्स्ट वन इज डेजी. ठीक है. एंड देन पेंजीज. ठीक है. आइज. ठीक है. अच्छा क्लास, आप लोगों ने ना इस तरह पूरे फ्रेजेस मेंशन नहीं करने कि पेंसिस लेफ्ट देयर आइज टू माइन. सेपरेट वर्ड्स आपने मेंशन करने होंगे. पेंसिस जो है वो, अब देयर देयर को इसमें इंक्लूड नहीं करना ना, देयर तो हम कुछ समझ नहीं आती. ठीक है. दिस इज द अनसीन वन, दिस इज नॉट इन योर टेक्स्ट बुक. ओके. Yes, yes, Heather. Daffodils is not also included, but it is not in your textbook. G. The clouds are romping with the sea, and flashing waves call back to me that not is real, but what is fear, that everywhere and everywhere. Romping class, it means कि when you are playing with something and you are moving in a very in a great energy basically, and you are moving freely. जिस तरह बच्चे खेल रहे होते हैं ना, वो बहुत खुश खुश होके खेल रहे होते हैं. ठीक है. और बहुत ही फ्री होके खेल रहे होते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं होती. ठीक है. सो बेसिकली ये वो बात हो रही है. अब मैं एक्सप्लेनेशन भी आपको दूंगी. एंड द क्लाउड्स आर रॉम्पिंग विद द सी. बेसिकली यहाँ क्लाउड्स और सी की बेसिकली एक एक्टिविटी हमें बताई जा रही है. जो क्लाउड्स हैं वो सी है नीचे. जस्ट इमेजिन करें कि देयर इज सी बीनीथ ऑन द ग्राउंड, ऑन द अर्थ, इन द ऑन द अर्थ बेसिकली. और क्लाउड्स जो है ना वो स्ट्रेच्ड हुए पड़े हैं उसके ऊपर, और ऐसा लग रहा है कि दे आर प्लेइंग विद ईच अदर. ठीक है. आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभार लाइक द वेदर बिकम्स सो प्लेजेंट कि हम क्लाउड्स को मूव होते हुए देख रहे होते हैं. ठीक है. सो इमेजिन दैट सीन इन योर माइंड. Romping means to play with someone. And flashing waves call back to me. और वो जो सी के जो waves हैं, ठीक है, सी के जो waves हैं बेसिकली, वो बहुत ही शाइन कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा शाइन कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो दे आर कॉलिंग मी. ठीक है. दे आर कॉलिंग मी. और वो मुझे क्या कह रहे हैं? दैट नॉट इज रियल बट वर्ड इज फियर. नॉट जो है, अगेन ये क्लास ट्रेडिशनल इंग्लिश का वर्ड है. नॉट मीन्स नॉट. अगेन ये बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टैंजा है. दैट नॉट इज रियल. वो कह रही हैं कि वो मुझे ऐसा लगा कि वो जो वेव्स मुझसे बात करना चाह रहे हैं ना, वो मुझे कह रहे हैं कि ये जो भी आप दुनिया में देख रहे हैं,
ठीक है, दुनिया में सफरिंग्स चल रही हैं, दुनिया में ट्रबल्स हैं, दुनिया में इतने प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं कि दैट नॉट इज रियल, वो रियल नहीं है। फिर रियल क्या है? बट व्हाट इज फियर? बट व्हाट इज फियर? फियर मीन्स ब्यूटी। लेकिन रियल हर वो चीज है जो जो ब्यूटीफुल है, मतलब कि वो अगेन नेचर की बात कर रही है, दैट एवरीवेयर एंड एवरीवेयर, और हर वो चीज प्यारी है जहां जहां खूबसूरती इस दुनिया में है। ठीक है, और नेचर की अगर हम बात करें तो हर जगह एवरीवेयर यू वुड बी सीइंग ब्यूटी। ठीक है, समझ आ रही है क्लास आप लोगों को? ठीक है, सो बेसिकली इस स्टैंजा में जो पोइटिस है, जो राइटर है, वो ये कहना चाह रही हैं कि मुझे वो बेसिकली क्लाउड्स और स्काई क्या कहते हैं, वेव्स की बेसिकली, सी की बेसिकली एक्टिविटी बयान कर रही थी कि वो नेचर को बेसिकली डिस्कस कर रही है कि कुछ भी हो, लाइक दे आर प्लेइंग विद ईच अदर, मीन्स के नेचर इज बिजी इन इट्स ओन एक्टिविटी। ठीक है, वेव्स, द शाइनी वेव्स आर आल्सो कॉलिंग मी, एंड दे आर सेइंग दैट whatever is surrounding you, like any type of troubles, complications, whatever is going in this world, वो रियल नहीं है। ऑफ कोर्स कुछ भी नहीं रहता। इफ यू आर फेसिंग बैड टाइम्स दे पास, इफ यू आर यू नो enjoying good times they pass somewhere as well। बट जो हमारी नेचर है, ठीक है, जो जो हमारी लाइक नेचर में आपके इतनी ज्यादा सीनिक व्यूज हैं, वो हमेशा के लिए रहते हैं। ठीक है, और वहां से हमने वी हैव टू गेन सम पॉजिटिविटी एंड मोटिवेशन एज वेल। So this is the summary of the stanza number 4। Please go through the questions जल्दी से। हाँ जी, क्लास रीडिंग कर लिए, जल्दी से बताएंगे। ठीक है जी, लेट मी सी हाउ मच स्टैंजेस आर लेफ्ट। ओके, द लास्ट वन, ओके। क्लास जल्दी से राइमिंग स्कीम डिस्कस करते हैं जी। सी एंड मी, इट्स मीन्स ए एंड फेयर एंड एवरीवेयर, दैट इज बी एंड बी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द पोएटिक डिवाइसेस क्लास। सबसे पहले लाइक आई वुड बी इनिशिएटिंग इट फ्रॉम माय साइड। सबसे पहले हमारे पास पर्सनिफिकेशन की यूसेज हुई हुई है, बिकॉज waves cannot call you, they are the ability of human beings, it is the ability of human beings। ठीक है, आपको waves आवाज नहीं दे सकती, आप although आप उसका उनकी वॉइस सुन सकते हैं, उनकी साउंड सुन सकते हैं, बट यू कैन नॉट, दे कैन नॉट कॉल यू। ठीक है, so this is the example of personification। And then the clouds are romping with the sea, this is again the perfect example of personification, because clouds can stretch, they can do their own activity, but they cannot play with anything, they cannot play with sea basically। This is only for human beings, for children and babies as well। So this is again the example of personification, and again in the last line we have the usage of repetition. Of course, two words are being repeated, that is everywhere and everywhere। And then we have the example of, let's discuss imageries then। ऑफ कोर्स क्लाउड्स, ठीक है, क्लाउड्स जिनको समझ नहीं आ रही कि इमेजरी क्या है, ये ऐसा ऐसा पोएटिक डिवाइस है जो आप वर्ड्स सुनते हैं और उनकी पिक्चर्स पिक्चर्स आपके माइंड में आती हैं। ठीक है, अभी आप लोग पिक्चर्स तक लिमिट रहे हैं, वैसे ये आपके 5 सेंसेस को डील करते हैं। तो आपके पास किस किस की एग्जांपल पिक्चर आएगी आपके माइंड में? क्लाउड्स की, सी की, देन देन वेव्स की। ठीक है, सो ये आपके पास एग्जांपल हो जाएगी इमेजरीज की, वेव्स की, साउंड्स। यस, ठीक है, गुड सबिहा, ठीक है। देन वी कैन वी डिस्कस द यूसेज ऑफ alliteration क्लास, हरी अप फ्रॉम योर साइड, alliteration, consonants and assonance।
एलिटरेशन एवरीवेयर एंड एवरी, यस गुड, ठीक है। सो लास्ट में आपके पास लास्ट लाइन में वी आर हैविंग द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एलिटरेशन बिकॉज ई साउंड जो है वो रिपीट हो रही है, ठीक है। एलिटरेशन गुड। Okay, in the first line, we have the example of consonants. Raw sound is being repeated, but और में जो है वो raw sound is being repeated in the mid, and romping में it is being repeated initially. So somehow we can say that it is the example of consonants. Then we have again the perfect example of assonance as well in the first line. Da ka da, and again the clouds are romping with the sea. ठीक है, दोनों दा में दा साउंड बीइंग रिपीटेड है। एवरीवेयर रेपिटेशन भी है और ये आपके पास एलिटरेशन भी है। दैट बट व्हाट, दैट बट व्हाट किधर है जी? दैट बट एंड वर्ड, ठीक है जी। क्लास थर्ड थर्ड लाइन में आपके पास एंड नॉट कभी टी, ठीक है। दैट का फर्स्ट वाला टी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट टी, आई एम सेकंड अबाउट द सेकंड टी एंड दैट, जो आपको टा साउंड दे रहा है, ठीक है। नॉट का टी, बट का टी एंड व्हाट का टी, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्सोनेंट्स। हाँ जी क्लास, अब हम आते हैं अपने लास्ट स्टैंजा पे। टाइमर हमारे स्टार्ट हो गया है। क्योंकि क्लास जल्दी से पॉपीज की जो पिक्चर है ना वो आप मैं जल्दी से सर्च करके मेंशन करें, यहाँ कमेंट सेक्शन में शेयर करें। पॉपीज, पॉपी, इट्स द नेम ऑफ अ फ्लावर। आप लोग पिक्चर जो है वो गूगल सर्च करके, फ्लैशिंग कुड बी कंसिडर्ड एज फ्लैशिंग 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 फ्लैशिंग। शेयर द पिक्चर हमथ एंड अदर्स। ठीक है, सो somehow they are in between red and orange. Okay, class, a glory lived through despair, though guns may roar and cannon boom. Roses are born and gardens bloom. My spirit still may light its flame at that same torch whence poppies came. ठीक है, इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं क्लास पहले वो देखें। ग्लोरी, ग्लोरी मीन्स ग्रेटनेस, अजमत जिसे कहते हैं ना, जिसको आप एडमायर करते हैं, जिनकी जिसकी आप तारीफ करते हैं। डिस्पेयर मीन्स बहुत ही कोई सैडनेस जो होती है ना, डिप्रेशन वाला जो माहौल होता है उसको हम कहते हैं डिस्पेयर, ठीक है। मायूसी वाला जो सीन होता है। दो गन्स, गन्स ऑलरेडी यू पीपल नो, weapons, they are called as weapons, Mayor and cannon. Cannon again basically they are considered to be the bigger guns, ठीक है, larger guns used in wars basically। ये भी weapons होते हैं but they are somehow larger in size। Roses are born and gardens bloom, my spirit still may light its flame at that same torch whence poppies came। whence का मतलब होता है when, जब, ठीक है। तो अगेन ये इंपॉर्टेंट स्टैंजा है आप लोगों के पास कि अगर आप लाइक यू आर हैविंग वेरी डिफिकल्ट टाइम इन योर लाइफ, आप बहुत ही ज्यादा मायूस हैं, आपका दिल कुछ भी करने को नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन उन सब कंडीशंस में भी इफ यू आर लिविंग एंड यू आर ट्राइंग एंड यू आर पॉजिटिव एंड यू आर होपफुल, सो इट मीन्स कि यू आर लिविंग अ लाइफ वर्थ लिविंग, ठीक है। उस लाइफ की जो है ना वो सब तारीफ करेंगे, सब उस लाइफ को पसंद करेंगे। दो गन्स में रोर एंड कैनन बूम, अगेन वो वार्स की तरफ जो है ना वो रेफरेंस दे रही हैं कि बेशक जो है वार्स चल रहे हों, वेपन्स यूज हो रहे हों, ठीक है, उनकी आवाजें आपके कानों, रोर का मतलब होता है लाइक दिस इज ऑनोमोटोफायर यूज्ड फॉर द वॉइस, और यू कैन से वॉइस ऑफ अ लायन, ठीक है।
तो गन्स की डिस्ट्रक्शंस वो आप लोग के पास आ रही हो, आप लोग उसको सुन रहे हो, ठीक है। लार्जर वेपन्स जो है ना वो बेसिकली वो भी, अगर उसकी भी बूम का मतलब होता है लाउड नॉइस, वो भी आपके कानों में अगर गूंज रही है, स्टिल ये तो नहीं होता ना कि अल्लाह ताला जो है वो रोजेस को कह देते हैं कि आप यू नीड नॉट टू ग्रो, या नेचर जो है वो काम करना खत्म कर देता है। स्टिल आपके पास रोजेस जो हैं दे आर बीइंग ग्रोन, ठीक है। एंड गार्डन्स ब्लूम, और गार्डन्स भी ब्लूम करते हैं। ब्लूम मीन्स कि उसमें जितने भी फ्लावर्स होते हैं वो बेसिकली ग्रो कर रहे होते हैं, ठीक है। लास्ट लाइन सेकंड क्लास, माई स्पिरिट स्टिल मे लाइट इट्स फ्लेम, जो मेरी स्पिरिट है, जो मेरी सोल है, जो मेरी करेज है, जो मेरी डिटर्मिनेशन है, बेसिकली वो स्टिल जो है ना वो शाइन करेगी, वो स्टिल जो है ना उसमें एक लाइट होगी, वो स्टिल जो है अपना जो फ्लेम है उसको लाइट अप करेगी। यहाँ बेसिकली बात हो रही है उसकी पॉजिटिविटी की, पोइटिस राइटर अपनी पॉजिटिविटी की बात कर रही हैं। और ये जो पॉपीज का आप लोगों को बेसिकली रेड और ऑरेंज कलर ऐसा लग रहा है जैसे ये लाइट प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। पिक्चर्स इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है कि मैं स्टिल जो है ना वो पॉपीज का वो जो डार्क कलर है या ऑरेंज कलर है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लाइट जो है वो प्रोड्यूस कर रही हूँ, मैं उस लाइट से अपनी सोल को, अपनी स्पिरिट को बेसिकली लाइट अप कर रही हूँ। एंड दैट सेम टॉर्च व्हेन पॉपीज केम, उस वो जो पॉपीज जो है वो रेड और ऑरेंज कलर बेसिकली प्रोड्यूस कर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां से जो है मुझे लाइट मिल रही है और मैं अपने स्पिरिट को बेसिकली ब्राइट अप कर रही हूँ। ठीक है, समझ आ गई क्लास आप लोगों को? जल्दी से बताएंगे। You must share it with me, or if we have time, you can share it here as well so that your classmates can go through it. But good. अच्छा जी, पहले पोएटिक डिवाइसेस क्लास डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि फिर जो है ना टाइम हमारे पास जा रहे हैं। पोएटिक डिवाइसेस फर्स्ट अगेन, कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस यूज हुई है क्लास? ठीक है, पर्सनिफिकेशन यूज हुआ है। पर्सनिफिकेशन जो है ना वो फर्स्ट लाइन में भी यूज हुआ है। डोंट प्ले विद द स्क्रीन प्लीज। फर्स्ट लाइन में भी यूज हुआ है। ग्लोरी लाइक अजमत नहीं रह सकती, मतलब वो इट कैन नॉट हैव अ लाइफ, ठीक है, इट्स अ फीलिंग। लेकिन यहाँ जो है वो राइटर क्या कह रही है कि अगर आप रहते हैं, अगर आपकी अजमत, आपकी जो पॉजिटिविटी है वो मायूसी में भी रह रही है, ठीक है। सो दैट वुड बी पर्सनिफिकेशन। इसी तरह रोजेस आर बॉर्न, रोजेस आर बेसिकली दे आर ग्रोन नॉट बॉर्न, बट अगेन वी आर गिविंग देम द ability or somehow the characteristic of human beings, ठीक है। सो वहां भी रोजेस के लिए हम पर्सनिफिकेशन यूज करें, ठीक है। गार्डन्स, अच्छा ये तो नहीं है। नेक्स्ट इज गन्स के लिए हम रोर का वर्ड यूज करें, ठीक है। रोर्स, दे ह्यूमन बीइंग समहाउ और एनिमल्स दे कैन रोर, ठीक है। बट वी आर यूजिंग इट फॉर गन्स, दे आर डन बाय लायंस, वी आर यूजिंग इट फॉर गन्स। पर्सनिफिकेशन है, बूम अगेन लाउड वॉइस है, इसको इट कैन नॉट बी द मतलब परफेक्ट एग्जांपल नहीं है कैनन बूम पर्सनिफिकेशन की, इसको आप लोग छोड़ दें, ठीक है। गन्स की एग्जांपल परफेक्ट है। देन वी हैव अगेन लास्ट लाइन में क्लास पॉपीज केम, ठीक है। तो ये बेसिकली दे कैन ब्लूम ना, फ्लावर्स ब्लूम कर सकते हैं, जिस तरह सनफ्लावर आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता से वो ब्लूम करता है, वो दिस इज अगेन द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। सो यहाँ भी पर्सनिफिकेशन यूज हुआ है। वी हैव 2 मिनट्स लेफ्ट जी। अलिटरेशन, कॉन्सोनेंट्स और एसोनेंट्स आप लोगों ने ऑलरेडी ही बता दिए हैं, ठीक है। ग्लोरी एंड थ्रू में आपका यूज हुआ हुआ है जी कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। देन लेफ्ट एंड थ्रू में अगेन था साउंड इज बीइंग रिपीटेड, तो ये आपके पास कॉन्सोनेंट्स की एग्जांपल है जी। देन हमारे पास सेकंड लाइन में सेकंड लाइन में क्लास रोर और बूम जो है ना ये एजोनेंस की एग्जांपल नहीं है, ठीक है। ये एजोनेंस की एग्जांपल नहीं है। एक आपको शॉर्ट साउंड दे रहा है, दूसरा आपको लॉन्ग वॉल साउंड दे रहा है, सो इट कैन नॉट बी द एग्जांपल ऑफ एजोनेंस। रोजेस रोजेस रोजेस, ठीक है, मैं उसी पे आ रही थी। रोजेस आर बॉर्न, ठीक है, एंड गार्डन्स ब्लूम, रॉ साउंड इज बीइंग रिपीटेड जी, ये आपके पास कॉन्सोनेंट्स हो गया है, ठीक है। एंड लास्ट में आई थिंक अगेन हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं, एट, दैट एंड टॉर्च।
सिंबलिज्म, अगेन सिंबलिज्म भी हमारे पास है, टॉकिंग अबाउट द फ्लावर्स, पॉजिटिविटी एंड होप। Class, so this was the end of the poem. I think we are already running short of time, so I hope आप लोग को समझ आ गई होगी। ठीक है, जल्दी से यस नो बताएं सारे। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें जो स्टैंजा मैंने आप लोगों को बताया बताया है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो लास्ट थ्री स्टैंजेस है, फर्स्ट टू नहीं है, लास्ट थ्री स्टैंजेस जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। थर्ड स्टैंजा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके क्लास, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स प्लीज। अल्लाह हाफिज।